Sahadev to start off the proceedings as far as the bowling of Sridev Bodgeshwar is concerned. With the bat, it will be Suprit along with Ajay, opening partners of CKC Adpai. Full toss delivery straight to Sunny will just be a single. Good delivery. This is the quarter final. Quarter final 2. Played between Sridev Bodgeshwar, KC Adpai. Again looking to hoik it on the onside. Missed it completely. Dot delivery nevertheless. Full toss delivery, no proper timing. Straight to Sanam. Sanam does well. Will just be a single. That's nicely played. And that's 6. So in the air and gone, taken. One shot too many. Straight to Amrut Velekar. New man is Gaurish. He'll be at the striking end. Nicely played through the covers. And will just be a couple of runs to Ajay. Score moves on to 10. 1.1, 10 for 1. Down the ground. And that's big. And that's gone for 6. Head on. Again a reverse, and this time it's gone all the way. Half a dozen runs. Just give the ball back.
Again trying to play the ramp, missed it completely. Dot delivery. Nicely played. Flick, and it's gone all the way. Well endeavored from that fielder, but it's the third six of this over. Good work by Praveen Vakila. Will just be a single. Score moves on to 29. After completion of 2, it's 29 for 1. CKC Adpai. So change in bowling, it will be Sanket. Nicely played. Down to deep backward square. And will just be a single. Score moves on to 30 with that single. Swing and missed. Third over in progress. Good delivery, slower delivery. Just dipping on the batsman on the last occasion. Played down the ground, will just be a single. Score moves on to 31. Swing missed. Again trying to go downtown. Swing again, and that's gone. Smartly stumped by the wicket. That's big, and starts off in
Change in bowling. It will be Rohan into the bowling attack. After completion of 3, it's 37 for the loss of 2 wickets. Brilliant delivery to start off. Dot delivery. That's big. And that's gone all the way for 6. Again. This time over Skralik for 6. Score quickly on to 40. The fast you're going to travel. And again, this time one-handed. And again, 3 in a row now by Gaurish. Three maximums in 3 deliveries. Again, same result, same direction. Again, enough. Top for 6. Next one, another 6. Third one, another 6. And the fourth one also disappeared for a maximum. Nicely bowled, right in the block hole that time. And will be coming back for the second one as well. Expensive over in the context of the game. 26 runs coming from that over after completion of 4-3. Atharva will be bowling the final over. Starts off with a good delivery. Tekish outside edge will just be a single. All the scoring in the previous game was done by Preetham Sheth. But this time he is just telling his partner, why don't I give you the strike and you do the hitting. Previous over, 4 maximums on the bowling of Rohan Shetty. Was bowling really fast and was travelling really fast in the air and outside the boundary rope. This time cut away down to sweeper cover and will be coming back for the second one as well. Yes, indeed. Good running between the wickets by these two.
Score moves on to 66. Another 4 deliveries to go in this innings of CKC Adpai. Nicely played. Good work by the fielder. Another single taken. So far it's been a pretty quiet over. This single of this first, then a couple of runs, and then a single. 3 deliveries have costed 4 runs. There, as I say, that's gone big, and that's taken in the ground. Maximum. 2 deliveries left. Good delivery. That's a quick delivery. Bit of fumble by the keeper will allow the batsman to scamper across in form of buys. Score moves to 74. Remember, folks, this is the highest total of the tournament so far. In the morning, we had 56 as the highest total. Now we are having 74. That's a mammoth total to chase down for the Sridev Bodgeshwar. Final delivery coming up. In the air, chance fielder coming in. In fact, the bowler going for it. And it's not been taken. A couple of runs taken. And Pritham Sheth will be run out at the other end. So that's it. Innings done and dusted after completion of 5 overs. CKC Adpai winning the toss, deciding to bat first, have managed 76 for the loss of 3 wickets in their 5 overs. Target will be 77 for Sridev Bodgeshwar. Top scored by Gaurish with 30 runs. Really well supported by Pritham with 14. And Ajay also started off with 23. Talking about the bowling, well, it started off with Tushar with 8 runs, giving just 1 run. Sanket bowled well for his 8 runs, 1 wicket. Apart from that, Atharva, Amrut were taken to cleaners. And talking about Rohan, well, he was the expensive bowler in the context. 26 runs came off his bowling. So 77 will be required. रहेगा जो कल का वो 8:30 का, और शाम पहला मैच होगा कल का, वो होगा साई यश 12 और असगांव क्रिकेटर्स। इन 2 टीमों के बीच में पहला मैच होगा। साई यश 12 और साई यश क्रिकेटर्स। 8:30, 8:45 टॉस, और 9 बजे ठीक पहला मैच खेला जाएगा, पहली गेंद जो फेंकी जाएगी। तो चलिए, 77 का टारगेट है, एक आज के दिन का हाईएस्ट टोटल खड़ा कर दिया है सीकेसी अडपई क्रिकेट टीम ने, और देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी होती है श्रीदेव बोडगेश्वर क्रिकेट टीम की। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर, प्रवीण वाघेला स्ट्राइक पर, सनी नांदोडकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और पावर प्ले का पहला ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए वैभव गेंदबाजी करने के लिए। 77 का टारगेट टोटल मैच को जीतने के लिए। सुबह के सत्र में असलोड़ा क्रिकेट टीम जो आगे बढ़ चुके, अब दूसरी टीम कौन होगी यह फैसला थोड़ी देर में हो जाएगा।
और अंपायर का इशारा सर राजेश सिंगणापुरकर और उन्हीं के साथ शिवशरण दाभोलकर उर्फ बाबू। पहली गेंद पर बड़ा शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ। प्रीतम ने बनाए 14। ये था बल्लेबाजी का लेखा जोखा। शॉट ऑन बॉल मिड विकेट पर सिक्सर 6 रन के लिए डी से। चौका लगा, छक्का लगा। स्ट्राइक पर प्रवीण सामना कर रहे आने वाली अगली गेंद का। वैभव अपने बॉलिंग बार पर। इस बार और बार उड़ाया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, लेकिन फील्डर है मौजूद। जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, अच्छा थ्रो, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज। एक बेहतरीन शॉट था, 2 रन मिले, स्कोर में 12 पर पहुंचा। एक अच्छी शुरुआत। टारगेट है 77 यानी 77 रनों का टारगेट है टोटल मैच को जीतने का। पावर प्ले का पहला ओवर मैदान पर चलता हुआ। छोड़ा जाने दिया यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। वाइड बॉल के साथ एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर में। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 13 रनों पर। अच्छी गेंद यॉर्कर लेन की, और जब तक मिड ऑफ पर आते फील्डर गेंद को फील्ड करते। एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी शुरुआत, लेकिन यहीं से लेकर ऐसे ही बल्लेबाजी, आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी इस मैच को जीतने के लिए श्रीदेव बोडगेश्वर गिरिम क्रिकेट टीम को। लेफ्ट हैंडर बैटर स्ट्राइक पर सनी नांदुरकर उर्फ भाऊ स्ट्राइक पर, और उनके लिए राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर वैभव गेंदबाजी करने के लिए। फुल टॉस मौका था बड़े शॉट के लिए। बिल्कुल एक अच्छा मौका था सनी के लिए, लेकिन टाइमिंग नहीं हुआ। बल्ले का अधूरा हिस्सा लगा, पेट पे टकराई सामने, और तब तक एक सिंगल पूरा किया। अगर सही टाइमिंग होता तो 4 रन बन सकते थे इस फुल टॉस पर। फुल टॉस, ओह पॉइंट पर गेंद हवा में निकली। एक सिंगल बना, दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। जब तक गेंद फील्ड होती कवर पॉइंट बाउंड्री से, थ्रो पहुंचा विकेट कीपर के हाथों में। तब तक 2 रन। पहले ओवर का खेल पावर प्ले का समाप्त हुआ, और पावर प्ले के समाप्ति के बाद 17 रन, 17 विदाउट लॉस। 17 रन किसी नुकसान से पहला ओवर समाप्त होने के बाद।
दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर। अब फील्डिंग में बदलाव हो चुका है। गौरेश नाइक अपने बॉलिंग बार पर खुद का पहला और टीम का दूसरा ओवर जारी रखते हुए। आगे निकलकर खेलना चाहते थे लेकिन एक शॉट ऑफ प्लेन गेंद ऑफ स्टंप पर बल्लेबाज को बीट करते हुए और गेंद चली गई विकेट के ऊपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बेहतरीन शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट पर फील्डर, कैच छूटा। कैच का मौका था लेकिन कैच छूटा और जब तक गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन मिला, एक रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 18 रनों पर। स्कोर पहुंचा 18 रनों पर। ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर, फिर से एक सिंगल। मैच को जीतना है तो बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, सिंगल डबल से मुकाबला मुश्किल रहेगा। एक रन मिला, स्कोर पहुंचा 19 पर। 19 विदाउट लॉस। ओ अल्टी पल्टी की कोशिश, कोई खास समझ नहीं पाए गेंद के बारे में। एक डॉट गेंद, पहला ओवर अच्छा रहा, रन बने 17, लेकिन इस ओवर में गौरेश ज्यादा मौका नहीं दे रहे दोनों बल्लेबाजों को। ऑन साइड पर खेला, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर और बैकअप हो रहा था। सिर्फ एक ही रन मिल गया स्कोर में। 2 रन होने चाहिए थे लेकिन एक ही रन पर संतुष्ट हुए दोनों बल्लेबाजों ने। शॉट ऑफ लेन गेंद ऑफ स्टंप पर एक डॉट गेंद। तो ये ओवर अच्छा रहा, मेरे ख्याल से इस ओवर में बने सिर्फ 3 रन। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल न्यू बैटर मैदान पर अमृत वेरलेकर। 20 रन, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 3 ओवर बाकी, 57 रन मैच को जीतने के लिए। अमृत वेरलेकर स्ट्राइक पर। और इस बार ऑफसाइड पर एक गगनचुंबी हवाई शॉट, लेकिन कैच का मौका नहीं मिला। 1 रन दूसरे के लिए पलटे, जब तक थ्रो पहुंचता बहुत ही शानदार थ्रो, लेकिन 2 रन नहीं। बिल्कुल चुके दोनों बल्लेबाज। 2 रन के साथ अमृत वेरलेकर ने अपना खाता खोला। गेंद थोड़ी सा हवा में जरूर थी लॉन्गा पर, लेकिन एक मुश्किल सा मौका था। 22 लॉस ऑफ 1 विकेट। 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर सत्वेश अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर में अगली गेंद लेकर पुलटॉस लॉन्ग ऑन पर और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए।
26 पर पहुंचा टोटल स्कोर 26 लॉस ऑफ 1 विकेट। ऑन साइड पर थोड़ा सा ऑन दी राइट मिड विकेट पर फील्डर तेजी के साथ आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल और बड़ा स्कोर के खाते में इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 27। 27 पर पहुंचा। तीसरा ओवर जारी है, 2 ओवर का खेल आने वाला अभी भी बाकी है। ये गेंद में मौका मिला, विकेट कीपर ने एक आसान सा कैच पकड़ा और प्रवीण वाघेला आउट होकर वापस। बाहर इसे जीतने के लिए चाहिए 40 रन। 12 डिलीवरीज 40 रन, 12 चेंडू 40 धावा, 12 गेंदों में 40 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन, अजय आ चुके बॉलिंग मार पर। एक जोरदार अपील अंपायर की ओर, लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं था। एक डॉट गेंद के साथ शुरुआत होती हुई गेंदबाजी में अजय की। अमृत वेरलेकर स्ट्राइक पर, हर गेंद पर अब चौका छक्का लगाना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ 11 गेंदों का खेल बाकी है और मैच को जीतने के लिए चाहिए अभी भी 40 रन। सिंगल से मुकाबला मुश्किल रहेगा। एक रन 10 गेंदे और 39 रन। सनम स्ट्राइक पर। बहुत ही 2 बड़े शॉट लगा चुके हैं सनम। गेंद चले गए विकेट के ऊपर को बीट करते हुए थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ और 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। और छोटे गेंद इस बार पुल किया मिड विकेट बाउंड्री पर सनम के बल्ले से बहुत ही लाजवाब शॉट, गेंद चले गई सीमा रेखा से बाहर।
30 रन स्कोर हो चुका है 48। और अगर एक शॉट इस ओवर में लगा तो आखिरी ओवर में बिल्कुल ये मुकाबला कांटे का मुकाबला होगा। अभी भी चाहिए 39 रन, 29 मोर, स्कोर हो चुका है 48। इस ओवर में 2 गेंदों का खेल बाकी है। इस बार बहुत ही लाजवाब, एक बार फिर से रिवर्स का अल्टी पल्टी का शॉट, 1 रन पूरा किया और 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 49। चौथा ओवर, अजय अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर के आखिरी गेंद यानी 7 गेंदों का खेल बाकी है। 28 रन चाहिए। इस गेंद पर, आने वाली गेंद पर एक बड़ा शॉट लगा तो आखिरी ओवर में 22 रन। मुकाबला बिल्कुल एक लाजवाब मुकाबला देखने को मिलेगा दोनों के बीच में। जो होना चाहिए मैदान पर, देखना होगा इस गेंद पर क्या होता है। स्ट्राइक पर अमृत वेरलेकर, ओहो फंस चुका है स्टार्ट। क्या 3 फील्डर अगल बगल में। ओह, ये बड़ा विकेट, ये मैच का विकेट। अमृत वेरलेकर वापस डीजे। और अगर इस मैच को सनम जीत दिलाते हैं तो सनम के लिए 2000 रुपए का इनाम जारी हो चुका है। 6 चेंडूत 29 धावा, 6 गेंदे और 29 रन, 6 बॉल्स 29 रन। प्रीतम आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर। प्रीतम और न्यू बैटर मैदान पर। ये गेंद डॉट गेंद। अब 5 गेंदों का खेल बाकी। अब हर गेंद पर सिक्सर लगानी पड़ेगी। वेल विशर्स की ओर से 2000 रुपए का इनाम है, लेकिन अब मात्र 5 गेंदों में 5 छक्के लगाने पड़ेंगे। स्लोवर वन। प्रीतम सेठ बिल्कुल कमाल कर रहे गेंदबाजी में। धीमी पेकी गेंद, 2 लगातार डॉट गेंदे। अब थोड़ा सा मैच मैं कहूंगा फंस चुका है। सुबह के सत्र में असनोडा क्रिकेट टीम बॉस असनोडा क्रिकेट टीम। ये फुलर लेन की गेंद और एक डॉट गेंद। शायद अमृत वेरलेकर जब आउट हुए तो थोड़ा सा दबाव बढ़ गया मैच पर। कहीं ना कहीं रोहन शेट्टी की जो ओवर 4 छक्के लगे वो ओवर भी बहुत महंगा साबित हुआ। वहीं पर एक बड़ा टोटल 76 रन बना दिया और 77 का टारगेट रखा। और सामने प्रीतम सेठ आखिरी ओवर में बिल्कुल किफायती गेंदबाजी। शॉर्ट आर्म बॉल मिड विकेट पर सिक्सर, 6 रन के लिए। और में 17 रन बने थे, लेकिन कहीं ना कहीं सनी संघर्ष कर रहे थे। 1-2 फुल टॉस गेंदों पर सनी अल्टी पल्टी की कोशिश कर बैठे और वहीं पर शॉट नहीं बना, लेकिन अच्छी शुरुआत की थी पहले ओवर में 17 रनों के साथ। बढ़िया शॉट, इस बार एक सुंदर ऑफ ड्राइव। बाउंड्री लाइन पर गेंद चली गई 4 रन के लिए। इस चौके के साथ टोटल हो चुका है 59। 18 रन अभी भी चाहिए मैच में जीतने के लिए। अल्टी पल्टी थर्ड मैन बाउंड्री पर सिक्सर, तो 2 शॉट से पीछे हो गया है मुकाबला। 11 रन अभी भी चाहिए थे मैच को जीतने के लिए। सनम की शानदार बल्लेबाजी रही, लेकिन मैं कहूंगा रोहन शेट्टी का ओवर 4 छक्के लगे। सनी ने शुरू में जो बल्लेबाजी सनी की रही, थोड़ी सी 1-2 गेंदें फुल टॉस थी, वहां पर 1-2 बड़े शॉट होने चाहिए थे, वो नहीं लगे। और अमृत वेरलेकर अगर रुकते तो शायद सामने टीम पर भी दबाव हो सकता था, प्रेशर हो सकता था। चलिए इस मैच का मैन ऑफ द मैच गौरेश नाइक मैन ऑफ द मैच, और ट्रॉफी दे देंगे सर।
अजय कोरगांवकर सर, अजय कोरगांवकर आपसे जो कि रिक्वेस्ट है, आप ही के हाथों से ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी। अजय सर आपके हाथों से, और मैन ऑफ द मैच इस मैच के गौरेश नाइक। तो थैंक यू श्रीदेव बोडगेश्वर गिरिम क्रिकेट टीम, बहुत अच्छा क्रिकेट आपने खेला। 2 शॉट से आप मैच से दूर हो गए।